Assalamu alaikum dear students. Welcome to English classroom standard 7. We are learning lesson number 4.2 Unke Munke Timpe 2. I have explained half of the lesson before you. Now we shall continue the next page. Up to now you come to know that Muk and his friend, a boy and his friend Muk, whose birthday was there, and he wanted a set of table tennis on his birthday, but his mother was unable to buy a set of table tennis for him. So Muk advised him to recite the chant Unke Munke Timpe Tu around a banyan tree at midnight 12. But when they go to Miss Groover's compound to do the chants, the door suddenly opened and they listened a crackle sound. Now we shall go further and see what happens next. Open your books, page number 82. I am going to read the story after that. Why should I come? No, not from there. Suddenly, a ferocious bark tore the stillness of the night. I froze. Suddenly, the ferocious bark, the barking of the dog. Ferocious, very fearful, dangerous. Tore the stillness, वहाँ का साइलेंस जो था उसको फाड़ दिया. I froze. Froze means he was frightened. He was so much frightened that he became freezed. Inside Mrs. Groover's house, lights flashed and the back door was pushed open. Now you can see the light coming from the door and the door was opened. Who is there? Called Mrs. Groover. Answer or I will send the dog at you. What she said? Answer, who are you? Otherwise I will send the dog on you. Muk, I mumbled. Say something, but Muk was climbing up the tree. फिर मैंने कहा कि मुक से समथिंग कुछ कहो, बट मुक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री, लेकिन मुक जो था वो झाड़ पर चढ़ रहा था. When I saw Mrs. Groover bend down to unleash the dog means to leave the dog on them, I pleaded, I apologized, I requested. I pleaded means I requested, please don't send the dog at us. I will explain everything if you let me. प्लीज़ आप जो डॉग को है वो हमारे ऊपर मत भेजो, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा. Speak out soon, Mrs. Groover shouted. Then Mrs. Groover said, speak out. What is going on? I told her everything. I feared she might not believe me. So the boy told everything to Mrs. Groover because he was fearing. She might not believe me. हो सकता है कि उसने मुझे पर भरोसा नहीं किया हो. But she listened to me without interruption. लेकिन बिना रुके उसने मेरी कही हुई हर बात को सुना. She just looked at me with the hard light green eyes of hers as if she was trying to see right into my heart. फिर भी उसने मेरी तरफ गौर से देखा. शायद she was trying to see right into my heart. वो मेरे अंदर जो सच है उसको तलाशने की कोशिश कर रही थी. So she asked finally, and you believe in Unke Munke Timpe Tu?
फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम उनके मन के टिम्पेटू में बिलीव करते हो? मीन्स डू यू बिलीव इन द चैंटिंग एंड गेटिंग समथिंग बाय द डिवाइन पावर? डू यू थिंक इट विल हेल्प? क्या तुम्हें लगता है कि इससे कुछ होगा? आई ड्रॉप्ड माई हेड एंड सैड सॉफ्टली, मैंने गर्दन झुका ली और धीरे से कहा, आई होप इट विल। ही वॉज अ बॉय, ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। सो उसको क्या लग रहा था कि ऐसा करने से सही में जो है मेरी विश जो है वो फुलफ़िल हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, वो जो चाहता है वो उसे मिल जाएगा। लेकिन कुछ मिल जाए इस ख्वाहिश में वो कर रहा था। वेल, शी रिटर्न्ड, इफ़ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाओ और अपने राउंड पूरे कर लो। शी टर्न्ड सेइंग, एंड व्हाइल लीविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट? एंड वॉट शी सेड, जब वो पलट रही थी तब उसने कहा कि अगर जब तुम राउंड पूरे करके वापस जाओगे तो अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम फ्रंट गेट से जा सकते हो। उसने मतलब उसको नाराज़गी से कहा। I did finish the remaining 6 rounds and left her garden using the front gate. मैंने बचे हुए 6 राउंड कंप्लीट किए और सामने के गेट से मैं वो बाहर आ गया। I swore that I would never return. मैंने कसम खाई। I swore means कसम खाना, swear कसम खाना। That I won't come back again, कि मैं यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। And then the great moment came. And then the great moment came. I opened my gifts, rejoiced over by new pair of shoes and the hand knitted pullover, and then my eyes fell on a parcel, a big parcel. और फिर वो दिन आया जिसका मुझे इंतज़ार था। मुझे गिफ्ट में शूज़ और स्वेटर मिला, लेकिन एक और पार्सल इसके साथ था, इतना बड़ा पार्सल। आई हैड नेवर रिसीव्ड सच अ बिग पार्सल अर्लियर। इतना बड़ा पार्सल तो मुझे पहले कभी भी गिफ्ट में नहीं मिला। टू रोहन खन्ना, आई रीड, उस पर लिखा था टू रोहन खन्ना फ्रॉम उनके मुनके टिम्पेटू। I stared at Mukh, and he looked as surprised as I was. और वो भी मुझे इतना सरप्राइजिंगली देख रहा था जितना कि मैं। We both were very surprised. My mother asked, who is उनके मुनके टिम्पेटू? Isn't that an unusual name? उन्होंने कहा कि ये क्या कोई unusual name नहीं है। Yes, I said, very unusual indeed. सही में ये बहुत अजीब सा है। I bent over the parcel and began to unpack it. I removed the strings and the paper impatiently. फिर मैं बेचैनी से उसे खोलने लगा। Finally, I removed the colorful gift wrapping and found a table tennis set. जब उसने उसको रैपर को खोला और देखा तो उसमें क्या था? उसमें जो है एक टेबल टेनिस का सेट था। टेबल टेनिस सेट। It was not a brand new. ये बिल्कुल नया नहीं था टेबल टेनिस सेट, बट इट वॉज अ फैबुलस वन, लेकिन ये बहुत ही कीमती था, अच्छा था। वाव, आई विश्ड जस्ट वाव, मैंने ऐसा ही चाहा था और ये मुझे मिल गया। टिल टुडे मुख स्वेयर्स ही हैज़ नथिंग टू डू विथ इट। फिर मुख ने कहा कि मैं इसके बारे में कसम खाकर कहा कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। That was the words of the Mukh. I wondered if old Mrs. Gruer was responsible for the surprise. हो सकता है ये Mrs. Gruer का काम हो। I wondered for a very long time. मैं बहुत दिनों तक हैरत में रहा।
One day I gathered up all the courage. एक दिन मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई. I persisted and went to meet Mrs. Groover. I used the front gate and rang the bell. I had gone over my lines 100 times. और मैंने उनसे क्या बात करना है ये बात मैं बार बार अपने वो जो सेंटेंस था वो मैं बार बार रटते हुए गया. But when she looked down on me with her pale green eyes, जैसे ही उन्होंने अपनी पीली पीली और ग्रीन पेलिश ग्रीन आइज से मुझे देखा, आई फेल्ट माई हार्ट सिंक, तभी मेरा दिल डूब गया. एंड माई करेज वैनिश, मेरी हिम्मत गायब हो गई. एंड ऑल आई कुड डू वॉज शटर लाइक एन इडियट, और स्टटर लाइक एन इडियट, और मैं एक इडियट की तरह वहाँ पर खड़े रहा. गुड आफ्टरनून मैडम, डू यू, आई मीन डिड यू, हैव यू, सॉरी बट डू यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पे टू. फिर उसने उनको ऐसे छोटे छोटे टूटे फूटे अल्फाज में इस तरह से कहा, बिकॉज ही वॉज सो मच फियर्ड. मिसिस ग्रूवर कंटिन्यूड टू लुक एट मी with a strange look in her eyes. She replied softly but seriously, yes, I do believe in उनके मुनके टिम्पे टू. फिर उसने कहा कि हाँ, मैं उनके मुनके टिम्पे टू में बिलीव करती हूँ. I had wished to have somebody over for tea today. मैं इसमें बिलीव करती हूँ और आज सही में मैंने विश की कि आज मेरे साथ कोई चाय पीने के लिए आए. And here you are, और यहाँ तुम आ गए. Now isn't it a perfect example of उनके मुनके टिम्पे टू, और ये उनके मुनके टिम्पे टू का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है. She smiled and she looked so different, almost a human. उसने मुस्कुराया और वो मुझे एक ह्यूमन नज़र आई, मतलब एक बहुत अच्छी औरत, एक बहुत समझदार और काइंड पर्सन ह्यूमन उसमें नज़र आया. From the day onwards, Mook and I went to see old Mrs. Groover quite often. और अब उसके बाद से मैं और मुख अक्सर मिसेस ग्रोवर से मिलने जाते हैं. Not only because she made the best tea and had the best cookies, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी चाय बनाती है और बहुत अच्छी कुकीज़ हमें खिलाती है. No, we went because we liked her, हम उसे पसंद करते हैं. एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, और हम तीनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है, वी ऑल बिलीव इन उनके मुनके टिम्पे टू. दैट इज़ द एंड ऑफ द लेसन. ये हम तीनों उनके मुनके टिम्पे टू में बिलीव करते हैं. व्हाट इज़ द लेसन ऑफ दिस लेसन? व्हाट इज़ द लेसन? व्हाट लेसन यू गेट? Do all you believe in all these things, in superstitions, in believing that if we chant something, if we do the hymns, we get our wishes fulfilled? No, it is not so. कोई मंत्र पढ़ने से, कुछ ऐसे चैंट्स करने से, कुछ भी पढ़ने से क्या हमारी विश पूरी हो सकती है? नहीं. हमें क्या करना चाहिए? मिसेस ग्रूवर ने क्या किया? उनकी तमाम बातें सुन ली और उसके पास जो टेबल टेनिस का सेट था उसने एज ए गिफ्ट उन बच्चों को उस बच्चे के लिए भेज दिया. और ये उसने जो इंसानियत दिखाई ना, उसने उन लोगों को डांटा ना, मारा और कुछ भी नहीं कहा, और उसके पास जो चीज़ थी वो एज अ गिफ्ट उन्हें दे दिया. तो इस तरह से कोई इंसान किसी की मदद करके किसी की विश पूरी कर सकता है, किसी के जो डिज़ायर्स रहते हैं उसको फुलफ़िल कर सकता है. इससे इंसानियत भी दिखती है, और हमें ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए. All the human beings only can help each other, and have faith in God, not on all that doing the things which does not exist. I shall stop here. We shall solve the exercise in our next video. Till then, have a nice day. Allah Hafiz and goodbye.